Good morning, students. Now, last time we had finished the lesson 3, that is fiber to fabric, and I have started to share the question answers and objectives of this lesson with you. So keep completing it into your workbook as well as your textbook. The textbook question answers which are not there in the workbook, I will give it to you in the notebook. So I will write down the answers and give you the snapshot so that you can copy it down in your notebook. Rest I have given it here, so complete it in your textbook itself. Those answers which are not there, those only I will write it down on a piece of paper and send you a copy of that. Now let us start with lesson 4, that is heat. In chapter 3 you have learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season, right? वुलन क्लोथ्स क्यों हम लोग कोल्ड में पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं? बिकॉज विंटर में बाहर बहुत ठंडी होती है, सर्दी होती है, इसलिए अपने आप को वार्म रखने के लिए हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. बिकॉज वूल क्या करता है, आपके बॉडी की जो गर्मी है, आपके बॉडी की जो हीट है, वो अंदर ही ट्रैप करता है, उसे बाहर एस्केप नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आप अंदर वार्म फील करते हो. अगर आप ठंडी में कॉटन के कपड़े पहनोगे तो क्या होगा, कॉटन के कपड़े में से हीट इजीली एस्केप हो सकती है, तो आपको और ठंडी लगेगी. बाहर की जो ठंडी है, एटमॉस्फेयर की ठंडी से आपको और ठंडी लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी की हीट भी बाहर डिसिपेट हो जाएगी. लेकिन अगर आप ये वुलन क्लोथ्स पहनोगे तो वो हीट अंदर ट्रैप करके रखेगा, जिसकी वजह से वो आपको वार्म रखेगा और आपको बाहर की ठंडी का इफेक्ट नहीं होगा. In winter, you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you will feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आप उस ऑब्जेक्ट को छूओगे, गर्म होगा, तो तुरंत आपको पता चलेगा कि ये गर्म है, राइट? अगर आपको कितना गर्म है ये फाइंड आउट करना है तो आपको उसका टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा. टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? थर्मोमीटर. थर्मोमीटर इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स यू टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, राइट? वैसे ही दूसरे किसी का भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर्स होते हैं, अलग टाइप के होते हैं. ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर के लिए अलग थर्मोमीटर्स होते हैं, इधर लैब में और इसमें अलग चीज़ों के, सॉल्यूशंस के या सॉलिड्स के टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए अलग टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं. ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस. नाउ, हॉट एंड कोल्ड. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold, right? कुछ गर्म होते हैं, कुछ cold होते हैं. Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or cold. आप यहाँ पे लिख सकते हो. आइसक्रीम cold होती है, right? Then spoon in a cup. टी कप गर्म होता है, क्योंकि टी गर्म होगा तो ये भी स्पून भी गर्म हो जाएगा. फ्रूट जूस कैसा होता है? ठंडा होता है. हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन गर्म होता है. हैंडल कभी कभी ठंडा भी हो सकता है अगर वो सेफ हीटिंग मटेरियल का हो, तो वो ठंडा भी हो सकता है. तो हैंडल से आप पकड़ सकते हो फ्राइंग पैन को. तो इट कैन बी बोथ कोल्ड और हॉट ऑल्सो. किसी का कंडक्टिंग हीट कंडक्टिंग मटेरियल का होता है तो वो हॉट भी हो सकता है. Okay, further, do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects. But is our sense of touch reliable? Let us find out. Yes, reliable तो है ही. Take activity 4.1. Take 3 small tubs or containers. Label them as A, B and C. Put cold water in mug A and hot water in mug B. Mix. Make sure that water is not so hot that you burn your hand,
राइट. डो नॉट डू दिस एक्सपेरिमेंट विथ वेरी हॉट वाटर, अदरवाइज यू माइट बर्न योर हैंड. फिर तीसरे में दोनों को मिक्स करना है, हॉट एंड कोल्ड को मिक्स करके वार्म वाटर बनाना है. सब cold water and some hot water in mug C. Now dip your left hand in mug A and the right hand in mug B. अब लेफ्ट हैंड को हमने डाला मग ए में. मग ए में क्या है? आइस कोल्ड वाटर है, राइट. एकदम ठंडा पानी डाला है. मग ए में क्या डाला है? पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, राइट. तो हमने ठंडा पानी डाला है. और मग बी में क्या डाला? एकदम गर्म पानी डाला है, right, garam pani. And after keeping the hands in the two mugs for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. दोनों हाथों को simultaneously mug C में डालना है. Do both the hands get some feeling? अब अगर आप दोनों में हाथ डाल के तीसरे में डालोगे वार्म वाटर वाले में, तो आपको कोई भी फीलिंग आएगी नहीं, बिकॉज आपके हैंड्स क्या हो जाएंगे? नम्ब हो जाएंगे. एक आपकी स्किन उससे नम हो जाएगी आइस कोल्ड वाटर से, और दूसरा एकदम गर्म पानी से आपकी स्किन नम हो जाएगी. और फिर आप उसको वार्म वाटर में डालोगे तो थोड़ी देर तक आपको कोई सेंसेशन नहीं आएगा. अगर आप 5-10 मिनट तक वो भिगा के रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वार्म वाटर है, राइट. सो आइस भी कभी आप हाथ में पकड़ते हो तो आपका हाथ सुन्न हो जाता है. सेम इज द थिंग विच इज हैपनिंग ओवर हियर. Okay, Bujo says, my left hand tells me that the water in the mug C is hot, and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us, right? कभी कभी हमें पता नहीं चलता है. Then how do we find out how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. कैसे पता चलेगा hot है या cold है? By measuring its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. बताया मैंने आपको, थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है. ह्यूमन बींग्स के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं. जो लेबोरेटरीज में यूज़ होता है या फैक्ट्रीज में, इट इज़ कॉल्ड लैब थर्मोमीटर. फर्दर, measuring temperature. Have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer, जो clinical purposes के लिए use होता है. Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. You do not have a thermometer. You do not have a thermometer. Request a friend to share it with you. Right? अगर आपके पास नहीं है तो शेयर करने के लिए बोलो. If है यहाँ पे. If you do not have a thermometer, you can request your friend whosoever has it. A clinical thermometer looks like the one showed in figure 4.2. ऐसा दिखता है. Right? It is shown in the figure. So there are different markings here and here it is the mercury दिखाया जाता है, इसमें होता है मतलब, और वो ऐसे मेल्ट होता है. ये पोर्शन आप अपने आइदर टंग के नीचे रखते हो या आर्मपिट में रखते हो. वहाँ से क्या होता है, टेम्परेचर सेंस करके ये मर्क्यूरी मेल्ट होने लगता है. बिकॉज रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड होता है. जैसे ही उसे थोड़ी सी हीट मिलती है वो एक्सपांड होना शुरू हो जाता है और वो टेम्परेचर दिखाएगा आपको, राइट. ऐसे दिखाता है टेम्परेचर. ये एनलार्ज करके यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया है. ओके. फर्दर, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. एक छोटी सी पतली सी ग्लास ट्यूब इसके अंदर होती है, जिसके अंदर जो मर्क्यूरी है वो स्लाइड होता है. ओके. Glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. This is the bulb. ये bulb में mercury होता है. Outside the bulb is small shining thread of mercury can be seen. Right? This is the shining thread of mercury. वो melt होने के बाद mercury आगे आ जाता है. Can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you सी इट, राइट. तो अगर मर्क्यूरी थ्रेड नहीं दिखे तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे मूव करके, उल्टा सीधा आगे पीछे करके वो इसको देख सकते हो आप. कैन बी सीन. इफ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट.
You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by degrees Celsius. Now see, here I have got the thermometer at my home that I will show you. This is the bulb of the thermometer. यहाँ पे mercury होता है. And this is the small tube. एकदम पतली सी ट्यूब होती है. देखो इसमें टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 2.5 टेम्परेचर दिखा रहा है. इट इज़ 2.5. यहाँ तक मर्क्यूरी आया है मेल्ट होके. कैन यू सी इट शाइनिंग, राइट? सो दिस इज़ द टेम्परेचर, दिस इज़ द वे इट शोज द टेम्परेचर. फिर आप उसको ऐसे झटकोगे तो वो नीचे उतर जाएगा, राइट? पर आपको बहुत केयरफुली उसको झटकना पड़ता है, ये बल्ब को डैमेज नहीं हो, ये ध्यान रख करके. और इसके अंदर मार्किंग्स बनाए हैं, देखो इस ट्यूब के ऊपर. दिस इज़ फ़ारेनहीट एंड दिस इज़ सेल्सियस. ऊपर सेल्सियस स्केल है, ये फ़ारेनहीट है. फ़ारेनहीट में इट इज़ शोइंग 2.5 जस्ट नाउ, राइट? एंड इन सेल्सियस इट इज़ शोइंग 39 और 40. 37 इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर, या 100 इन फ़ारेनहीट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर, राइट? और ये जो है दैट इज़ मोर देन दैट. दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग कि जो जिसको लगाया है उसको बुखार है अभी. द टेम्परेचर इज़ हायर, राइट? देयर इज़ अ स्मॉल कप ओवर हियर. यहाँ पे एक छोटा सा बेंड होता है जिसमें से मर्क्यूरी स्लाइड होता है, राइट? ओके, so now let us move further. I'll put the thermometer inside. Okay, so देख लिया आपने थर्मोमीटर. फर्दर इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट. मैंने आपको रोटेट करके दिखाया कैसा दिख रहा है, वो शाइन होता है मर्क्यूरी. अ बिट टिल यू सी इट. यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर. द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस. दोनों देखा हमने, डिग्री सेल्सियस और डिग्री एफ लिखा था, दैट वॉज फ़ारेनहीट, राइट? इट इज़ ऑल्सो अ मेजर टू, इट इज़ ऑल्सो unit of measuring heat. Okay, further Bujo wondered which of these two scales shown in figure 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range 94 to 108 degrees is the Fahrenheit scale, that is degree F. ये भी आपको दिखाया मैंने थर्मोमीटर में Fahrenheit scale भी था. It was in use earlier. पहले फ़ारेनहीट स्केल को यूज़ करते थे. सी यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहीट लिखा है, राइट? इट इज़ अप टू 108, जैसे यहाँ पे मेंशन किया 94 to 108, 94 to 108, राइट? एंड दिस इज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. ओके, उसके बाद लेट अस मूव ऑन. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. Activity 4.2, reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also note down the number of divisions. Divisions जो उसके ऊपर ऐसे दिए हुए हैं उसको नोट डाउन करना है. उसके बाद shown by smaller marks between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. Then one small division can read 1/5, that is 0.2 degree Celsius. Okay, wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jerks. Jerk मैंने दे के आपको दिखाया ताकि उसका जो मर्क्यूरी का जहाँ तक पहुँचा हुआ होता है लेवल, वो नीचे उतर जाता है मर्क्यूरी, ताकि आप उसको फिर से यूज़ कर सकते हो. अभी मैंने जो दिखाया वो 202 पे 250 पे ये हो गया था, जम गया था. अभी उसको नीचे उतारने के लिए ऐसे थोड़ा झटकना पड़ेगा, राइट? मर्क्यूरी डाउन. एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. जो उसका नॉर्मल रेंज होता है वहाँ तक वो गिरना चाहिए. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with its unit. Temperature को हमेशा हम unit के साथ बोलते हैं, that is degree Celsius, right? India में भी we follow degree Celsius temperature in.
What did you record as your body temperature? The normal body temperature of human body is 37 degrees Celsius. Note that the temperature is stated with its unit, right? डिग्री सेल्सियस के साथ ही हमेशा टेम्परेचर को लिखा जाता है. अगर बुखार भी होगा तो भी डिग्री सेल्सियस में ही उसको लिखा जाएगा. इसीलिए हमारा जो थर्मोमीटर है वो 35 से चालू होता है. 37 पे रेड मार्क आपको दिख रहा है. क्यों रेड मार्क है? बिकॉज वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है. और अगर उसके ऊपर जाएगा तो हम इस बताता है कि हमको फीवर है. राइट? ओके. आगे. Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37. Let us try to assure Paheli that there is nothing wrong with her. Let us read this first. This box. Precautions to be observed while using a clinical thermometer. Thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. Antiseptic से उसको साफ करना चाहिए बिकॉज एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में अगर हम लगाते हैं, अगर उनकी टंग के नीचे लगाते हैं तो उनका सलाइवा लगेगा. राइट? तो उसको एंटीसेप्टिक से वॉश करना बहुत ज़रूरी है. Ensure that before use the mercury level is below 35. किसी का टेम्परेचर लगा हुआ है, उसका 104 डिग्री दिखा रहा है और दूसरे को लगा दिया तो सेम उसका भी टेम्परेचर वही दिखेगा. तो इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग दैट मर्क्यूरी टू द नॉर्मल लेवल फर्स्ट एंड देन मेजर अनदर पेशेंट्स टेम्परेचर. रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट. एकदम सामने रख करके, आई के सामने रख करके उसको देखना चाहिए. टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करके आपको रॉन्ग रीडिंग मिलेगा. हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर. इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक. वो कांच का होता है, अगर आप किसी जोर से झटक दोगे, हाथ से छूट गया तो गया. कांच का होता है, फूट जाएगा और उसका मर्क्यूरी जो है वो सब निकल जाएगा. डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट. बल्ब में से यहाँ से उसको पकड़ना नहीं है, पीछे से पकड़ना है, नहीं तो आपका जो फिंगर का टेम्परेचर है वो भी वो ले लेगा. राइट? ऑलवेज होल्ड इट फ्रॉम द बैक साइड, नॉट फ्रॉम द बल्ब. Okay, so these are the measures which are given for helping to see the temperature in the thermometer. Now we stop here at activity 4.3 today. We will do further next time. Write down all these points which I have made you underline. Right? Yeah, all these points which I have made you underline in your notebook. What is the normal temperature? All these points are to be written. Okay. And from activity 4.2 we will start next time. We stop here today. I will also be sending you the question answers of last lesson from your workbook. उसके पहले के भी लेसन के अगर बाकी हैं तो साथ में मैं फॉरवर्ड करूँगी, तो प्लीज़ कंप्लीट करते रहना. Okay, we stop here.